Very good evening, and this is Sangeeta from my daily office, home office rather. And thank you to be here. And you might have been spending your time somewhere else, but you decided to be here on a very wintry, cold evening today. And let us set some ground rules before we go ahead. Uh, this will be a 90 minutes webinar, so please be here for 90 minutes. If you have some other engagement in between, then you can leave right now because you know no use listening to half the story, whatever I have to tell, right? And keep a notepad and pen handy so that you can take note of any point that might you come across. And yeah, stay here for 90 minutes. And thank you again. And you will start learning something from this webinar itself because um, I have similar experiences uh, as you had been facing in your life. That is why you are feeling stuck and unfulfilled, which has been an experience with me also for uh, for almost all the time. Like say every 3 or 4 days, I too feel the same. While I have to again regain back my own thing and start telling myself what I have done. So that happens because your expectation goes up. So let us start and let me start sharing the screen. Let me make it full screen. So this is a three-step blueprint of leadership growth using resourceful influence, which is a very unusual way of achieving significance. And this is for mid-career professionals with 5 to 12 years of experience feeling stuck and unfulfilled, which I just now told you. And what is there for you here? This will help you design your roadmap. You will be sought after, create victories, and you will be ready for 3x growth, which are essential components of making growth obvious. So you are not after salary or promotion or any hike, but it will be obvious for you to gain those because you are deserving. Who I am? I'm Sangeeta, of course, and so far I have trained 18,000 professionals to impact about 1 crore lives since 2008 in 16 states, directly or indirectly. And the people that I have trained, though those people are doing great for themselves as well as for the people around, and they're impacting lives in many ways, which is my primary goal. Because if we start creating impact with people also, then we are heading for fast transformation in the society for creating better place for ourselves to live in. Do you realize that? So that is my first thing. I wanted to be happy, and I didn't want to be happy alone, all by myself. Can you be happy alone, all by yourself? No. So you have to be in a society, and somehow wherever I worked, I saw deprivation, I saw scarcity, and which can be transformed easily also. So that is why if we can transform easily, why not do that and help people to be happy so that you can celebrate together. So whatever I am saying may sound very abstract, but if you want to be happy, you have to have people who are also happy around you. Otherwise, alone you can't be happy. Alone you can't be celebrating. And the third thing is how to create the transformation is at least two skills in people are there which can be leveraged to make them distinguished, and that is how people can start feeling happy. There are other ways, thousand ways to be happy, thousand ways to be constructive, thousand ways to be productive, and thousand ways to earn, right? And you can start with two skills. At least I have discovered at least two skills. If I spend time with you for say
1 month or so, I can discover many skills, more than 2 skills, but instantly I can see 2 skills. So these are the three aspects with which I have started my journey, and I have uh, discovered that capacity in me to help people become like transformer themselves, right? Why I'm doing this? Obviously for positivism, creativity, and become more. And so that why I have started this was like say, I saw people grieving about their workplaces. They were unhappy about their workplaces mostly. Life is a big work space, and your career space is part of that, a subset of that. And if you are spending your time 80%, 70% of your time at workplace, and if you are not happy about that, then you are wasting 70% of your life there. So if you start being positive, then you can be creative and you can discover your potential more, which is how you become more. So how this this has come to me. So as a child, I was a chamchi of my father, and I learned a lot from him because I was reading a lot about many distinguished people like say Gandhi, Tagore, and many world leaders as well. And I remember my mother speaking a lot about third world and their leaders like Nehru, Marshal Tito, and the third person I forgot. And so they were teaching me a lot about how people are, and I could see the reflection in them, in my parents. So uh, what they have taught me was like say be a kingmaker to leverage, and not many people like to be kingmakers because it is about giving the credit to somebody else. Um, and take for example the happenings in a football field. क्या होता क्या है उधर? एक बंदे ने आपको बॉल पास किया एंड आपने गोल स्कोर किया, तो नाम उसी का होता है जो गोल स्कोर किया, बट टाइमली अगर उसने गोल आपको नहीं दिया, बॉल आपको नहीं दिया होता, तो आप स्कोर नहीं कर सकते थे. सो देन जो गोल स्कोर किया उसी का नाम होता है, नॉट ऑफ द पर्सन हु पास दैट बॉल एट द राइट मोमेंट टू यू. सो उसका नाम नहीं होता है, बट उन्हीं की काफी सारी जरूरत है, राइट? ऑल द टाइम गोल्स आर नॉट स्कोर्ड. वो टाइम पे पास करे तो भी मिस हो जाता है. सो इनका नाम तो कहीं पे भी नहीं आता है, बट अगर वो नहीं करे देन आपके गोल भी स्कोर नहीं होंगे, क्योंकि आउट ऑफ 10 अटेम्प्ट्स में भी आप 2-3 टाइम्स सक्सेसफुल होते हैं एट द बेस्ट एंड ऑन एन एवरेज. और अगर कोशिशें भी नहीं होंगी तो फिर आप के सक्सेस भी नहीं होंगी. So that was the first thing. The second thing is start small and build upon that. ये कैसे पता चला? As a kid, I बहुत ही छोटी थी जब एक क्लास में एक हम मतलब बच्चे लोग शोर कर रहे थे. मैं भी क्लास टीचर उस टाइम में थे नहीं, तो उन्होंने किसी और टीचर ने आके सबको बोला कि आप अपने बुक से एक पेज लिखो. सो आई स्टार्टेड राइटिंग. मेरा हैंड राइटिंग भी उतना अच्छा नहीं था, बट देन व्हेन आई स्टार्टेड एक्चुअली उसको उसको फिर बहुत सारे लोग होते हैं ना कि ये पेज नहीं, चलो ये ठीक नहीं हुआ, सेकंड पेज एंड देन थर्ड पेज, और ऐसे करते करते वो कभी शुरू ही नहीं कर पाते. सो व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड एंड आई वेंट ऑन. मुझे पता था कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, और मैं भी, बट आपको पता है कि जब आप एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के साथ लिखते हो, लाइक से आपके जो मार्जिन है आपने बहुत अच्छे से दिया, एंड देन डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस अगर आपने यूनिफॉर्म रखा, तो हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी नहीं हो तो भी आपका जो पेज है बहुत अच्छा दिखता है. सो
व्हाट इज इम्पोर्टेंट? आपका एक पेज लिखना इम्पोर्टेंट था ना, हैंड राइटिंग उससे उसका कोई मतलब नहीं है। टीचर ने तो आपको नहीं बोला ना कि आपको बहुत अच्छे हैंड राइटिंग से लिखना है, टीचर ने बोला एक पेज लिखने को। सो दैट इज व्हाट आई डिड। और मैं बहुत छोटी थी जब मुझे ये पता चला कि जो काम शुरू करो, शुरू करके उसको फिनिश तक ले जाओ, देन इट लुक्स बिग, इट लुक्स सब्सटेंशियल, इट लुक्स इम्पोर्टेंट। और अगर आप वही नहीं किए तो आप शुरू ही नहीं कर पाते। सो दैट वाज द सेकेंड लर्निंग। थर्ड, अगर किसी और को आप क्रेडिट दे दो तो होता क्या है कि आपके पास एक से ज्यादा हो जाता है पोर्टफोलियो। लाइक स्किल बिल्डिंग होता है, जो मेरा काम होता है। स्किल बिल्डिंग में क्या होता है कि स्किल तो एक ही नहीं होती है ना, बहुत सारे स्किल्स होते हैं। सो एक स्किल, मान लीजिए कि somebody इज डिस्प्लेइंग, मतलब किसी को टेलरिंग का बहुत शौक है, राइट? तो उनको अगर आप दे दिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेलरिंग, तो मेरे मेरे टीम में बहुत सारी लेडीज होती हैं और मेरे जो बेनिफिशियरी होती हैं वो भी लेडीज होती हैं। तो सबसे अच्छा क्लिक क्या होता है कि टेलरिंग सिखा दो, और आप डेवलपमेंट के नाम पे अगर कुछ बस टेलरिंग से शुरू करते हैं, पापड़ बनाना, ये सब बनाना, चिप्स बनाना, अचार बनाना, इससे शुरू करते हैं लोग। सो दैट वाज द स्किल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अभी तो स्किल्स बहुत सारे हैं, कंप्यूटर्स भी स्किल्स हैं। और जैसे मैं सीख रही हूँ अभी डिजिटल मार्केटिंग, ये भी स्किल है, ये स्किल्स भी हैं। तो मैं मास्टर तो किसी स्किल, बहुत सारे स्किल्स की नहीं हो सकती हूँ, एक दो स्किल्स की हो सकती हूँ। लाइक मेरे टॉपिक, मेरे जो आपके आपके भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे ना आपके स्कूल करिकुलम में, स्पेशली स्कूल्स में बहुत सारे टॉपिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं जो पढ़ाए जाते हैं। और आप हर किसी में, मुझे याद है कि मैंने टॉप हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट नहीं रखा, मैंने सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट में हाईएस्ट रखा था, और बाकी सारे में मैं सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट थी। तब भी मैं टॉपर हुआ करती थी एक जमाने स्कूल में। सो लाइक दैट, आप एक स्किल का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी और को दे दिए तो देन द सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कम, ऑफ विच somebody else, किसी और ने मास्टरी की हुई है उस पे, तो उसको दे दिए, थर्ड दे दिए। सो ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं कि किसी किसी एक टारगेट ग्रुप की स्किल बिल्डिंग करनी है तो स्किल एक जैसी नहीं होती है, और आपने सबको दे दिया और सबका आपने फीडबैक ले लिया तो इनसाइट आपके बिल्ड होते हैं। आपको बहुत ज्यादा हर स्किल के बारे में नहीं पता हो तो भी थोड़ी बहुत आपको पता चल जाती है, बिसाइड्स आपके जो कोर स्किल्स हैं। तो आप अगर किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे थोड़े से, जैसे शादी वाली बात होती है, अभी अभी मैं एक शादी अटेंड करके आई हूँ अपने फैमिली में, उसमें इसलिए मैं बोल सकती हूँ। तो शादी में क्या होता है, हर एक बंदा सब कुछ नहीं कर रहा होता है ना, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी हर एक बंदे को मिली हुई होती है और अपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो जो उस घर का मास्टर है, हेड ऑफ द हाउस होल्ड, शादी की जिम्मेदारी और शादी की क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है, राइट? और आपने सब कुछ अच्छे से किया, तो इसीलिए अगर आप किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो देन द क्रेडिट कम्स टू यू। तो क्रेडिट के बारे में बाद में सोचिए, आप अपनी वर्सैटिलिटी के बारे में सोचिए कि आप कितने अच्छे से ग्रो कर सकते हो बाई जस्ट हेल्पिंग अदर्स, राइट? और ये थोड़ा सा हटके है, जो फोर्थ पॉइंट है, जो डिफाइनिंग मोमेंट्स इन माय लाइफ था। तो पापा ने बताया कि अगर आप कोई डिसीजन मेकर नहीं हो तो आप डिसीजन नहीं ले सकते इजीली, अगर नहीं ले सकते तो यू लूज टाइम। और जब आप डिसीजन जल्दी लेते हो तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो, एंड कुछ उसमें से सक्सेस होते हैं, कुछ फेल्यूर्स होते हैं। फेल्यूर्स जैसे ही होते हैं आपकी लर्निंग होती है, वो लर्निंग होती है तो आपके सक्सेस के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। पहले 50-50% से होती है, उसके बाद बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने एक बार फेल होके सीखा कुछ, राइट?
आपको समझ में आ रही है बात? देन फिफ्थ इज, अगर आप जो कर रहे हो उसमें अगर आपको कहीं पे लगा कि 5% और कर देते तो आपको शायद कुछ और नई इंसाइट मिल जाती। अगर आप उसको पोस्टपोन नहीं करके उसी टाइम 5% कर दिए तो नेक्स्ट टाइम आपको काम करते हुए 95% एफर्ट आपके सेव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पेपर पढ़ रहे हो, कुछ एक आपने देखा, आप भूल गए, बोले कि आप बाद में पढ़ लेंगे, तो फिर बाद में आप पूरे पेपर को ढूंढते रह जाओगे ना कि कहाँ पे आपने वो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ी थी, फिर से आपको पूरा पेपर ढूंढना पड़ जाएगा। तो जिस टाइम आपने देखा उसी टाइम अगर आपने पढ़ लिया तो डन हो जाता है ना, राइट? सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि 5% अगर अभी आपने एफर्ट दे दी तो आपको 95% टाइम आपके सेव हो जाते हैं। टाइम पे मैं बहुत फोकस्ड होती हूँ, क्योंकि आप टाइम पे अगर काम कर लेते हो ना बहुत ज्यादा उसी टाइम पे, तो आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं और आप फास्ट, बहुत सारा, एक पेज जो मैंने बात की थी, एक पेज जो लिखते हैं आप लिख सकते हो, एक पेज लिख सकते हो डिस्पाइट नॉट हैविंग गुड हैंडराइटिंग। ये थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट इसलिए है कि क्योंकि डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ थे और उससे वो एक पॉइंट था जिससे मैंने काफी सारे और चीजें की, राइट? तो सैलरी हाइक के लिए मैं सैलरी हाइक कैसे हो उसके पीछे नहीं गई, सैलरी हाइक होने का रीजन क्या है उसी पे काम किया, राइट? तो टाइम होता है ना, टाइम एक रिसोर्स होता है, तो और उसको अगर आपको अच्छे से मैनेज करना है तो आप सेव करते हो कॉस्ट भी, तो इसी से आपकी सैलरी हाइक होती है। तो इसीलिए मैं ये पॉइंट मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ रिसोर्सफुलनेस पे आते हैं कि ये रिसोर्सफुलनेस है क्या। तो अभी मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि सोर्स, रिसोर्सेस एंड रिसोर्सफुलनेस आर थ्री थिंग्स व्हिच इज गोइंग टू बी डिफाइनिंग थिंग्स इन द करियर, कमिंग करियर में जो होता है। कहीं पे पढ़ा कि जो बड़े बड़े 19 कंपनीज हैं इंक्लूडिंग IBM, वो आगे जाके आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखने वाली है, वो आपके एप्टीट्यूड देखने वाले हैं और उसी के अनुसार वो आपको जब भी रिक्रूट करते हैं तो आपको एक छोटा सा कोई कोर्स दे देते हैं, तो उस पे आप कैसे काम कर सकते हो। तो आपके अदर जो एट्रीब्यूट होते हैं आपके कैरेक्टर में, वो काम उसी से लेना चाहते हैं, ना कि अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का आप मैक्सिमम 26 to 30% ही लगा सकते हो काम में, नॉट मोर देन दैट। बाकी 70% आप कहाँ से सीखते हो? दैट इज बिकॉज ऑफ योर एप्टीट्यूड, एंड दैट इज एप्टीट्यूड से क्या होता है, रिसोर्सफुलनेस आता है। सो दिस इज द क्लू अभी। तो अभी ये टाइम है कि आप अपना रिसोर्सफुलनेस को पहचानो एंड रिसोर्स को पहचानो जो आपकी स्किल्स है, आपके अंदर है एप्टीट्यूड, एंड उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करना शुरू कीजिए, वही है रिसोर्सफुलनेस। मेरे फास्ट एक्सपीरियंस ऑफ रिसोर्सफुलनेस हुआ जब मैं एक HR वर्कशॉप में गई और जहाँ पे रिक्वायरमेंट ये था कि आप अपना HR पॉलिसी डिजाइन करके डिस्प्ले करो, और मैं सबसे छोटे ऑर्गेनाइजेशन से थी, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का HR पॉलिसी तब तक बना नहीं था। तो मैंने थोड़ा सा टाइम आउट लिया और एक HR पॉलिसी डिजाइन किया और प्रेजेंट किया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने बहुत परफेक्ट कोई HR पॉलिसी बनाई थी, लेकिन मैंने एक HR पॉलिसी का ड्राफ्ट तो बनाया था, शुरू तो उसी से हुआ, एंड वो काफी अप्रिशिएट हुआ था। और इसको मैं रिसोर्सफुलनेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसी बेसिस पे फिर बाद में उस ऑर्गेनाइजेशन में, जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, वहां पे मैंने अप्लाई किया तो मुझे रिकमेंडेशन वो पार्टिसिपेंट्स के मिल गए थे उस कंपनी के, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था उस कंपनी में, जो अदरवाइज नहीं होती, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस, उनके जो एक्सपीरियंस वो मांगते हैं या फिर क्वालिफिकेशन मांगते हैं वो था नहीं। सिर्फ इसी बेसिस पे मेरा हुआ था, राइट? सो इट दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ रिसोर्सफुलनेस। अभी थोड़ा सा आते हैं कि मेरे जो टॉपिक है वो डिससेटिस्फेक्शन और स्टैग्नेंसी क्यों है। आप इतने
स्टक और अनफुलफिल्ड क्यों महसूस करते हो? लेट अस सी कि रीजंस क्या हैं। तो इंडस्ट्री डेटा बोलती है कि सैलरी की वजह से, रिलेशनशिप विद बॉस की वजह से, वर्क कंडीशन टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से, माइक्रो मैनेजमेंट सुपरविजन की वजह से, एंड रिलेशनशिप विद कलीग्स। बनती नहीं है कलीग से, बॉस से, इससे उससे, इसी वजह से एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन है। लेकिन उसके साथ एक दूसरा भी सिनेरियो ये है कि जो रीजन एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन के लिए है, वही सेम रीजन कुछ लोगों के लिए प्लस है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है कंपनी पॉलिसी, माई सुपरविजन अच्छा लगता है, उसको सुपरविजन, पॉजिटिव सुपरविजन अच्छा लगता है। वो लोग जो सुपरविजन के फेवर में बोल रहे हैं, उनके साथ माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होता। रिलेशनशिप विद बॉस, ये बनाते हैं, डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप विद बॉस कैसे हो। वर्क कंडीशन इसी वजह से होता है कि इनका माइंडसेट वैसे ही होता है। और ये दो तरफा होता है, एम्प्लॉय की तरफ से एंड एम्प्लॉयर की तरफ से। तो इसीलिए वही सेम रीजन जो रीजन होते हैं डिससेटिस्फेक्शन। सैलरी किसको अच्छी लगती है? आपकी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, आप फिर भी अनहैप्पी हो, राइट? फिर भी वो सैलरी अच्छी लगती है क्योंकि लोग दूसरा कुछ अचीव कर रहे होते हैं क्या, राइट? लेट अस सी। और जब आप डिससेटिस्फाइड हो, तो आपको, आज अगर आप डिससेटिस्फाई हुए तो अगले दिन आपको दूसरा जॉब या दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला। तो आपको हो सकता है 6 महीने से 3 से 5 साल लग जाए दूसरा जॉब मिलते मिलते, राइट? तो उस दौरान आप क्या करते हो? जो 6 महीने से लेके 3-5 साल भी लगते हैं, उस टाइम में आप क्या करते हो? आप लेस देन 20% अपने प्रोडक्टिविटी के हिसाब से चल रहे हो, और उस दौरान आप, जब आप 20% प्रोडक्टिविटी पे हो, तो आप तो उम्मीद ही नहीं कर सकते ना कि कोई ग्रोथ की, या फिर आप कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हो, तो सेटिस्फेक्शन भी आपकी नहीं है, और आप स्टक फील कर रहे हो, राइट? लेट अस सी अगेन। हाँ, तो लेकिन फिर मैंने एक मार्केट रिसर्च किया, जिसमें मैंने पता किया कि आखिर मेरे जो इर्द गिर्द के लोग थे, क्या उनके वही सेम इश्यूज थे जो यहाँ पे जो बताए जाते हैं कि एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन के वही रीजन है। मुझे मिला कि there are issues which are, not all the issues are workplace related, but they are affecting work performance. तो ये देखिए, लेफ्ट साइड में मैंने रखा है, जो व्हाइट में रखा है वो है वर्क प्लेस रिलेटेड इश्यूज जो अभी तक पता थे, और वर्क प्लेस रिलेटेड इश्यूज जो नहीं थे वो पिंक में है, और वो इतने सारे हैं। कंपैरिजन किसी और के साथ कि उसकी सैलरी मेरे से क्यों ज्यादा है, आगे क्या करें, अनश्योर ऑफ नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब कंसिस्टेंसी है, आज पढ़े, नेक्स्ट अगले 4-5 दिन तक नहीं पढ़े, या फिर 2-4 दिन तक कुछ किए, फिर छठे दिन छूट गया। वो एक्सरसाइज की बात हो, पढ़ाई की बात हो, कुछ भी है। रिलेशनशिप विद स्पाउस, ये वर्क प्लेस से रिलेटेड तो है नहीं, कि क्योंकि आपके अंदर डिससेटिस्फेक्शन है तो आप बरस पड़ रहे हो अपने स्पाउस पे। सेल्फ डाउट, ये तो आता ही रहता है, ये तो मुझे या किसी भी बहुत ही सक्सेसफुल इंसान को देख लो, उनके भी सेल्फ डाउट आते हैं। और सेल्फ डाउट नहीं आए तो आप खुद को ऐसे इवैल्यूएट कैसे करोगे? फिर भी कुछ लोग, सेल्फ डाउट इतना आता है कि वो एकदम से पैरालाइज्ड हो जाते हैं। मोटिवेशन इंस्पिरेशन की बात तो है ही, आप इंस्पायर्ड नहीं हो, आप मोटिवेटेड नहीं हो, आप अपने इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही नहीं पा रही हो। फ्रिक्शन विद फ्रेंड्स, लोगों के साथ झगड़ा होता है क्योंकि उसका स्टेटस बढ़ गया, या फिर मेरा स्टेटस कम है, या फिर वो शो ऑफ कर रहा है, कुछ भी नेगेटिव चीज समझ के आप फ्रिक्शन हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं पैसे वाले हो गए इसलिए आजकल मेरे साथ ठीक से बिहेव नहीं करते। लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, अब अपने आप में जो कमियां हैं इसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दूसरे जब देख रहे हैं तो आपको दुख होता है, लेकिन आपके अंदर जो कमियां हैं आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए दूसरे भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं।
राइट? वो खामियां वो ढूंढ रहे हैं, आस्किंग फॉर हेल्प। आप मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जब आप नेगेटिव हो, दुखी हो, तभी आप हेल्प के लिए मांग जाओ किसी के पास, ये नहीं है। लेकिन आप अपने आप को ज्यादा प्रोडक्टिव करने के लिए किसी का हेल्प अगर ले लिए तो आप प्रोडक्टिव हो जाते हैं ना, क्योंकि आप में आदत ही नहीं है किसी का हेल्प लेने की, तो आपने मांगा ही नहीं। फाइंडिंग मोर पेन देन प्लेजर, ये तो मैंने एक टेंडेंसी देखा कि लोगों को दुखी होने का शौक है, ये देखा मैंने। तो आप बोलेंगे कि ये कैसा, ये थोड़े ही है, लेकिन आप देखो अपने इर्द गिर्द लोग, क्या यार क्या है जिंदगी, कैसे चल रहा है, चल रहा है बस, सुनते हैं ना आप। तो आप खुश, किसी को खुश देखते हैं क्या? तो बहुत जनरलाइज नहीं है, लोग दुखी होने में उनको मजा आता है। नो शेयरिंग, और आप क्यों दुखी हैं वो भी शेयरिंग नहीं होता। आप बताते तो हो कि चल रहा है लाइफ में, कुछ नया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन रियल एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है वो शेयरिंग नहीं होती है। अगर आप शेयर कर दो, खुद से ही शेयर कर दो कि आप क्यों दुखी हो, तो उसका सोल्यूशन उसी वक्त निकलने वाला है ना। एक दिन या 2 दिन आप करके तो देखो, एक दिन या 2 दिन आपको लगेगा कि कोई सोल्यूशन नहीं है, तीसरे दिन इसका सोल्यूशन मिलने वाला है, बशर्ते आप एक्शन लो। राइट? फियर ऑफ चेंज, बहुत सारे लोगों को फियर ऑफ चेंज से बड़ी मुश्किल होती है। एक बार मैंने माँ से पूछा था कि पापा हमेशा ही गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में क्यों काम किए, अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी में चले जाते, जैसे ट्रैक्टर वाली कंपनी है टाफी या कुछ बहुत बड़ी कंपनी है, जहां से पापा को वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए ऑफर आया था, लेकिन वो चेन्नई में था और हम लोग भुवनेश्वर में थे। और माँ को फियर ऑफ चेंज, प्लेसेस चेंज से बड़ी परेशानी थी, तो वो पापा को जाने नहीं दी। ये मुझे याद है ये स्टोरी, फियर ऑफ चेंज के बहुत सारे स्टोरीज हैं कि आज तक आप फिक्स्ड कंफर्टेबल किसी पोजीशन पे हो, एंड देन कुछ होता है कंपनी में, अगर कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज कुछ होना है, तो आपके ब्रेक थ्रूज होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, डिसरप्शंस होते हैं, ये सारे चेंजेस होते हैं। और ये जो चेंज है, इसके लिए जो बहुत ही कंफर्टेबल है वो तो रेजिस्ट करेंगे ना, ठीक है, इसीलिए रेजिस्ट करते हैं। और उनको समझ में नहीं आता है कि ये अगर चेंज हो जाएगा तो इससे भी अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में शायद वो आ सकते हैं, या फिर इससे अच्छी अचीवमेंट उनकी हो सकती है, लेकिन वो फियर रहता है, फियर ऑफ अननोन, क्या होगा आगे पता नहीं। अभी तो एस्टेब्लिश्ड है ना फियर ऑफ फेल्योर, ये तो है। और बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ है, सैलरी है, गाड़ी है, घर हो गया। अभी अभी बहुत सारे यंग लोगों के पास घर हो गई, गाड़ी हो गई, उसके बाद उनके सपने नहीं है। सपने जब नहीं हो तो आपको ड्राइव कौन करेगा? और यही है क्या लाइफ में जो आपको ड्राइव करने वाला है, घर और गाड़ी? घर तो आपको, आप जहाँ पे रहते हो, अगर वो घर आपको बहुत अच्छा मिल जाए ना, तो फिर उसके आगे आपको और घर आप अपने साथ लेके जाने वाले हो, या फिर जो घर बनाओगे उस घर में आपके बच्चे रहने वाले हैं? नहीं ना। आप 5 साल में उस घर से उब जाओगे, फिर दूसरा घर ढूंढोगे, या फिर महल ढूंढोगे, या फिर पता नहीं क्या। तो उस घर में आपको एक कमरा ही तो चाहिए, उस घर का एम्बियंस ऑफ कोर्स चाहिए बहुत अच्छा, लेकिन आपको एक कमरा ही तो चाहिए उस घर में, राइट? और एम्बियंस ऑफ कोर्स जो लोगों से भी आता है, आप अगर उनके बारे में नहीं सोचे तो आपका एम्बियंस और आपका रहने का स्टाइल मजेदार नहीं होगा, बहुत टाइम के लिए नहीं हो सकता है, राइट? और एक गाड़ी ले लिए, दूसरे 3 साल में दूसरी गाड़ी ले लोगे, गाड़ी चेंज ही करते रहोगे, बहुत अच्छी गाड़ी ले लोगे, लेकिन आपकी आपकी जिंदगी क्या हो गई? गाड़ी और घर, इसके अलावा कुछ नहीं। राइट? तो फिर आप बोलोगे कि कुछ मजा नहीं है जिंदगी में, तो फिर कैसे होगा? राइट? फियर ऑफ गेटिंग जज्ड, कोई दूसरा क्या सोच रहा है मेरे बारे में, यार उसको टाइम ही नहीं है सोचने के लिए, फिर भी हम सारे कोई वैसे ही है, राइट? ये कोई मेरे साथ नहीं होता और आपके साथ होता है ऐसा भी नहीं है, ठीक? और स्लेव माइंडसेट, ये भी
आया था। स्लेव माइंडसेट क्या होता है कि आप, हाँ ठीक है, उन्होंने बोला और हमको करना है। स्लेव माइंडसेट मैंने गवर्नमेंट में काफी सारा देखा है, और ये उनके सिस्टम का भी है कि आपको बताया जाता है कि आप इसी तरह से काम करो, दूसरी तरह से करो ही नहीं, राइट। और दूसरी तरह से नहीं करने की जो है, तो ये तो ऑफिशियल है। और बहुत सारे लोग मुझे अभी भी बोलते हैं कि आपको ऐसे ही करना है। यार मुझे जाना ही नहीं उस ग्रुप में। अगर वैसा अगर है जहाँ पे आपको वेरिएशन या फिर आपको खुद में खुश रहने की इजाजत नहीं मिलती है, मुझे उस ग्रुप में नहीं जाना, राइट। लेकिन ये डिसीजन बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो अलग थलग पड़ जाएंगे। तो वो स्लेव मेंटालिटी हो गई ना। फिर आप थोड़े दिनों के बाद तो आप भी उब जाओगे, लेकिन आप निकल नहीं पाओगे क्योंकि फियर ऑफ फेल्यूर शायद है आपको। रेस्टलेसनेस, जब कहीं पे कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो रेस्टलेसनेस होता है, राइट। ऐसा ऐसा मैं बोल रही हूँ, आपके रीजंस कुछ और भी हो सकते हैं, और वो एक्सेप्ट करते हैं हम, लेकिन उसके सोल्यूशन भी हैं। एंड कंसंट्रेशन तो नहीं होता बहुत सारे लोगों को, प्रोक्रास्टिनेशन तो है ही, टाइम मैनेजमेंट तो है ही, प्लानिंग डेफिसिट है ही, नहीं कर पाते। ये सारे रीजंस भी हैं जो वर्क प्लेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। हाउ टू डील विद दिस? अभी मेरी मिशन है कि मैंने जो 18,000 लोगों को ट्रेन किया है उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। दे आर नाउ, छोटा काम करते हैं चाहे बहुत बड़े काम में, छोटे रैंक पे काम करते हैं या फिर बहुत बड़े रैंक में काम करते हैं, दे आर नॉट हेल्पलेस, राइट। वो काम करते चले जा रहे हैं, राइट। सो एंड दे आर मेकिंग ए डिफरेंस इन सोसाइटी। तो वैसे ही मेरा मिशन है इम्पैक्ट 1 बिलियन लाइव्स विथ 1 लाख सुपर परफॉर्मिंग ग्लोबल प्लेयर्स। 1 लाख लोगों को ट्रेन करना है ग्लोबली इन 139 कंट्रीज विथ $1 बिलियन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज उसके इर्द गिर्द बना देंगे ताकि लोग कंसिस्टेंटली काम करते रहें। ये मेरा मिशन है। एंड माई सिस्टम इज रिसोर्सफुल इन्फ्लुएंसर्स क्लब। तो इस क्लब में ये सारी बातें सिखाई जाती हैं और रोज इनके वेरिएशंस होते हैं। आपकी पर्सनालिटी अलग, उसी सेम प्रॉब्लम के वेरिएंस आ जाते हैं, डिफरेंट। वो बहुत डिफरेंट लगते हैं बट दे आर द सेम। यही सारे पॉइंट्स हैं। सो 3 सीक्रेट्स ऑफ रिसोर्सफुल इन्फ्लुएंसिंग। कैसे बनेंगे आप? फर्स्ट सीक्रेट, ये तो आपको पहले पता चलना चाहिए कि द रिसोर्सफुल पर्सन विंस कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस रिकॉग्निशन एंड ग्रोथ। 90% लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है, right? The second secret is how to succeed and achieve your goals despite organization related struggles. आपको लगता है कि ये सारे बॉडी खुशी खुशी से अपने आप हो जाते चले जाते हैं, एक बार आपको समझ में आ जाए तो ये अपने आप नहीं होते हैं। आपको कॉन्स्टेंटली उसके साथ चलना होता है, राइट। वो अगर चलना जब होता है तो काफी सारा अपने आप को समझाना होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जब आप सीख जाते हैं, जब आप एग्जीक्यूट कर देते हैं, फिर आपको सीखना होता है, राइट। सीखना तो होता है, सीखना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज ए रियलिटी, ए न्यू नॉर्मल। वो आपको करना ही है, अदरवाइज आप आउटडेटेड हो सकते हो, ऑब्सोलीट हो सकते हो, और इसीलिए फिर से आप स्टक फील कर सकते हो। थर्ड इज कितना सीखें। हाउ द बिग सीक्रेट टू स्टे रिलेवेंट विदाउट फीलिंग बर्नड आउट। कितना सीखें और कितना करें, ये थर्ड सीक्रेट है। बिना बर्नड आउट हुए कैसे आप रिलेवेंट रह सकते हो, दिस इज द थर्ड सीक्रेट। अभी सीक्रेट 1 पे आते हैं। द रिसोर्सफुल पर्सन विंस कंटिन्यूअस रिकॉग्निशन एंड ग्रोथ। ये ड्रिप टेक्नोलॉजी है मेरा। सो द फर्स्ट यू स्टार्ट विथ इज डिफरेंस एंड देन यू गो अप टू रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस एंड प्रोमिनेंस। तो डिफरेंस मतलब कि आप कैसे डिफरेंट हो, देन आप जो भी स्किल सेट है आपके, उसी को आप कंसिस्टेंटली कैसे एग्जीक्यूट करते हो, दैट इज रेजिलियंट। एंड उसी से जो आपके हैं, कंपैरिजन यहाँ पे नहीं है। दूसरे बंदे का स्किल सेट डिफरेंट है, इसीलिए उसके रेजिलियंस पैटर्न भी डिफरेंट है।
सो नॉट टू कंपेयर विथ अनदर पर्सन। आप क्या कर सकते हो आप वही देखो, वो रेजिलियंस है। और आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, उसी से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, राइट। अपना काम तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो क्योंकि आप उसी से बॉर्न हुए हो। यू आर बॉर्न यूनिक, सो इन्फ्लुएंसिंग भी आपका डिफरेंट ही होगा। और आपके आपकी रिलेवेंस भी वहां पे आपकी यूनिकनेस की वजह से है। इसलिए नहीं है कि आप किसी और की तरह हैं, इसलिए है कि आप यूनिक हैं, राइट। इन्फ्लुएंस एंड देन प्रोमिनेंस, उसी से आप कैसे प्रोमिनेंस अचीव कर सकते हो, जो हम सब चाहते हैं। प्रमोशन चाहते हैं, सैलरी हाइक चाहते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं। हाउ टू मेंटेन दैट, अटेन, हाउ टू अटेन एंड मेंटेन दैट, ये है लीडरशिप ग्रोथ, राइट। तो मेरे कुछ स्टोरीज हैं कैसे मैंने किया। तो ये 44 लाख वुमेन इन 2 months इन राजस्थान किया। तो इसमें क्या किया, 12,000 लोगों को मैंने ट्रेन किया। और विद इन, और ईच पर्सन लाइक से ईच डे 75,000 वुमेन वेर गेटिंग एन्यूमरेटेड। ये 2 मंथ में करना था। तो ये जो किया उसमें 250 कैंप्स भी बनाने थे और लोगों को पेमेंट भी करने थे, अपना रिपोर्टिंग भी करना था। तो वहां पे जो मेरे साथ जो कलीग थे उन्होंने बोला कि जब सभी कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, रिपोर्ट कैसे करें, पेमेंट कैसे करें, रिकॉन्साइल कैसे करें, तो आप कैसे आराम से सारा काम फिनिश करके अपने फिर लोगों को हेल्प भी कर रहे हो, राइट। तो इसका एक मैं बता सकती हूँ आपको कि मेरे पास एक लैपटॉप था। लैपटॉप तो हर एक के पास में था, लेकिन वो उसको लाए नहीं थे। लैपटॉप अगर होता है तो आपके सारे काम जल्दी हो जाते हैं, प्रोवाइडेड आप अगर टाइम पे उसी दिन का काम उसी दिन खत्म करने का डिसीजन लो। तो वो डिसीजन मैंने लिया था, राइट। अगर वो चाहते तो मेरे लैपटॉप में भी उन्हीं का उसी दिन का काम हो सकता था। एनीवेज, और जो मेरे सीनियर टीम लीडर थे, उन्होंने बोला कि राजस्थान में वो हमारा पहला ऑपरेशन था। तो उस रिमोट प्लेसेस में भी आपने लॉजिस्टिक का और लोगों के रहने का रहने का, मूवमेंट का, खाने पीने का, वो कैसे आपने बंदोबस्त किया। और लोग और फिर ऑफिशियल्स के साथ लियाजनिंग का। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा था मेघालय में, शिलोंग में, जहाँ पे सीएससी प्रोजेक्ट जो नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट हो रहा था। और वहां पे मेरा जो था कंट्रीब्यूशन वो ये था कि 239 कियोस्क सीएससी सेंटर्स वहां पे 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मेघालय में इंस्टॉल करने थे और सभी को डेटा कनेक्शन देना था। कनेक्टिविटी उसका बना रहना था, नहीं तो ई गवर्नेंस कैसे होता। ये सारे यूटिलिटी सर्टिफिकेट वहां पे हो रहे थे होने का वो जो अरेंजमेंट था वो मैं कर रही थी। तो वहां पे मेरे जो सीनियर थे नेशनल हेड, उन्होंने बोला कि उन्होंने कभी भी मुझे रिपोर्ट मांगा। एक बार मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, जब उन्होंने मांगा मुझे कुछ रिपोर्ट और मैंने उसको 10 मिनट के अंदर भेजा था। तो उन्होंने बोला कि आपके ऊपर आप डिपेंडेबल हो, राइट। फिर जो एनआईसी के हेड थे, जब मैंने वहां पे डेटा कनेक्टिविटी के लिए वहां पे ब्रॉडबैंड नहीं काम कर रहा था और टेलीफोन डिपार्टमेंट अक्सर पहले ब्रॉडबैंड सजेस्ट कर देते हैं, तो वहां पे मैंने डेटा कार्ड और वीसैट देने की बात की थी। मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये मैंने उन्हीं से ही बात करके बोला था। और मैंने बोला था कि जो कि डेटा कार्ड मैं यूज कर रही थी मेघालय जाके, ब्रॉडबैंड से हो नहीं रहा था, तो अगर मैं यूज कर रही तो बाकी सारों को भी दे सकते थे ना, ऑब्वियस था। बट वो ये ऑब्वियस सॉल्यूशन बहुत सारे लोगों को ऑब्वियसली नहीं आया था, मुझे आया था। एंड टेलीफोन डिपार्टमेंट वाज लाइक कि आपको ये सॉल्यूशन आते कैसे हैं। अब इसमें कोई बड़ी बात तो थी नहीं, यू कैन सी, लेकिन एनीवेज ये क्रेडिट मेरे पास आ गया। थर्ड में, क्योंकि उस कियोस्क में मुझे ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स डालने थे, तो मैंने ढूंढा 1500 के करीब लोगों को ऑल अक्रॉस मेघालय और उनको ट्रेनिंग दी। और सीएससी में आप कैसे अपना एक सर्विस करते हुए
कैसे अपना लाइवलीहुड भी, मतलब अपना पैसा भी कैसे कमा सकते हो, वो मैंने सिखाया। तो उसमें बहुत यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स आते हैं ना, जैसे आप आधार कार्ड प्रिंट करना हुआ, फिर आपके जमीन के कुछ सर्टिफिकेट हुए, बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हुआ आपके, ऐसे बहुत सारे यूटिलिटी काम आप कर सकते हैं सीएससी में। तो हर किसी से आप एक रेवेन्यू, एक फीस ले सकते हैं ना, उससे आप 5,000 टू 10,000 उसी टाइम में, दिस वाज इन 2008 टू 2010, तो कर सकते हैं। तो ये बिजनेस प्लानिंग थोड़ा सा उनको मैंने बताया कि ऐसे कर सकते हो आप। अगर 15 आधार कार्ड प्रिंट कर दिए, थोड़ा सा जेरोक्स करवा दिए, थोड़े से टाइपिंग करवा दिए, थोड़े से यूटिलिटी बिल पेमेंट कर दिए, तो आपके इतने सारे पैसे बच जाते हैं। दिस वाज खारमोलोंग इन चेरापूंजी सीएससी। उसके बाद जो मेरा प्रोजेक्ट था वो था एक फूड स्कार, जहाँ पे खाने के लिए नहीं थे, तो लोग फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे अपने खाने पीने के सामान के लिए। तो वहां पे मैंने 500 लेडीज को ट्रेन किया, जो और जिनको मैंने कई सारे स्किल्स सिखाए। मैं खुद केवीके और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से वो स्किल्स सीखे। और क्या स्किल्स सीखे थे, वो था सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड फार्मिंग, फिर उसके बाद हाइब्रिड मस्टर्ड कल्टीवेशन, और फोर्थ में हर्बल कल्टीवेशन। ये सारी चीजें जैसे सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन जो होता है, एसआरआई बोलते हैं उसको, ये सिखाया। और बाकी सारी चीजें तो आती ही है पैकेज में। उसके उसके साथ बहुत सारे स्किल्स आते हैं, जैसे आपके रूट ट्रीटमेंट होते हैं, आपके सीड ट्रीटमेंट होते हैं, आप के नर्सरी बनाने का स्किल्स होता है। ऐसे बहुत सारे स्किल्स होते हैं जो छोटा छोटा, हर एक लेडी को मैंने एक स्किल दिया, सिखाया, जो उसमें मास्टर थी। तो हर जो गांव हमने चूज किए थे, लाइक से 8 टू 10 विलेज, उस विलेज में, हर एक विलेज में मैंने एक लेडी को एक चीज सिखाई थी जिसकी वो मास्टर थी, और वो सर्विस दूसरे को देती थी, राइट। और दूसरे दूसरे ने कुछ और सीखा था तो वो देते, तो आपस में इंटरचेंज होता था स्किल्स। तो इसी तरह से वो मल्टीप्लाई भी होता था। तो ये बनाई, ये 4 साल में ये जो एरिया था ये। और होता क्या था कि ये दिस वाज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, तो फेंस नहीं था, लोग कोर एरिया में चले जाते थे और टाइगर किल करता था और लोगों की जो जान जाती थी। तो ये 4 साल में ये सीन पूरा चेंज हो गया। ये अपना फूड अभी प्रोड्यूस करते हैं, तो जंगल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। और लेडीज बिकेम लीडर्स। ये जो 500 लेडीज को मैंने वहां सिखाया 10 विलेजेस में, तो वो उनका एक फेडरेशन बना जिसमें 36 लाख रुपीस का कर्पस बना। इसका मतलब वो डिसाइड करते थे कि लोन किसको देना है, लोन अगर दिया गया तो उसमें से थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिलता है, इंटरेस्ट से आपका जो कैपिटल है वो बढ़ता है। देन ये मस्टर्ड कल्टीवेशन में हमने मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़ा था। मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड जो था 6 to 7 क्विंटल्स पर हेक्टर, यहाँ पे हमने हाइब्रिड कल्टीवेशन, मस्टर्ड हाइब्रिड कल्टीवेशन से 12 क्विंटल to 24 क्विंटल तक हमारा चला गया था। और ये क्रॉप एस्टिमेशन था वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। तो ये हमने किया था। और ये है वो बोर्ड मेंबर्स, 2 क्लस्टर मैंने बनाए थे, मानपुर क्लस्टर एंड ताला क्लस्टर, और दोनों के ये बोर्ड मेंबर्स हैं। वो जो 500 लेडीज थी, एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था, एक ऑर्गेनाइजेशन ही था जिसमें बोर्ड चुने गए थे। बोर्ड में 2 लेवल थे, इनके ऊपर फिर एक बोर्ड चुना गया था। तो हम जैसे करते हैं ना, जैसे ग्रास रूट वर्कर से फिर एमएलए, एमपी, फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ऐसे ही था। प्राइम मिनिस्टर एक मिनिस्ट्री भी बनती है, तो ये मिनिस्ट्री है। और इन्होंने 17 अवार्ड्स जीते थे 4 साल में। उसमें से एक अवार्ड तो गुजरात में था, जब ये जब नरेंद्र मोदी जी वहां पे दी देन चीफ मिनिस्टर थे। और इन्होंने पूरे ऑल इंडिया से आए हुए थे जो फार्मर, उनमें से
इन्हीं फार्मर को चुना। इनके जो क्रेडेंशियल्स थे वो काफी ज्यादा, और ये ट्राइबल थे, राइट, ट्राइबल, और घूंघट में थे जब मैं गई थी वहां पे। घूंघट में से ये डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बोर्ड में बोर्ड के मेंबर बने। 10 मिनट में इनको कलेक्टर का अपॉइंटमेंट मिलता था। तो ये जो जर्नी था, इस जर्नी के वजह ये कुछ कुछ चौंका देने वाला था। तो चौंका देने वाला था इसीलिए तो मेरे भी विजन बने ना, कि अगर मैं 4 साल में ऐसी लेडीज को लीडर्स बना सकती हूँ, तो फिर बहुत सारे लोगों को जिनके पास थोड़े बहुत स्किल्स हैं, मैं उनको तो पता नहीं फॉर्मिडेबल लीडर्स बना सकती, राइट। देन और एक लेडी थी देवती बाई, जिनके पास माइक्रो कैपिटल कॉन्सेप्ट था। आप जानते हैं, अगर गरीब के पास थोड़ा पैसा बनता है, तो एक इमरजेंसी आती है कि कोई बीमार पड़ जाता है या फिर घर में किसी का डेथ हो जाता है। इसके बाद वो पूंजी उनकी खत्म हो जाती है और उसके बाद वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में घुस जाते हैं। इनके पास बन नहीं पाता कभी भी कैपिटल। तो इन्होंने बोला कि वो कैपिटल हम बनाने का सोचें, सेविंग को कैपिटल हम बनाएं, क्योंकि वो खर्चा हो जाता है। तो वो अगर बनाए तो आपके पास जितना आपके सब्सिस्टेंस होता है, उसके बाद भी कुछ आपको सेव करने की जरूरत है। तो ये कॉन्सेप्ट उनका था। और हमने एसएचजी बनाए थे जहां पे 10 रुपए पर वीक सेविंग होता था। उससे हमने अट्रैक्ट किया बहुत सारे लोगों से पैसा। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो अ, कुछ पैसे आपको अवार्ड में देते हैं, राइट, उससे बन जाते हैं। ऐसे ही बने थे इनके कॉर्पस 36 लाख के। इनके पास 36 लाख विद इन 4 years बने थे। और इससे दी देन इंडस्ट्री मिनिस्टर आनंद शर्मा जो थे, इनको फैसिलिटेट किए थे। एक और फार्मर थे जो एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के अवार्ड जीते थे। ये लल्लीबाई हैं, जो एसएचजी फेडरेशन को मोबिलाइज करने में हेल्प की थी। ये आंध्र प्रदेश गवर्नर जो थे, इन्होंने फेलिसिटेट किया था। और बांधवगढ़ में जो मेरे कलीग्स थे, उसमें से एक हैं जिशु चक्रवर्ती, जो अभी यूएनडीपी ऑफिसर हैं। वो बोलते हैं अनकैनी टैलेंट टू स्पॉट टैलेंट इन अदर्स। ये 5 साल मेरे साथ काम करने के बाद, ये 5 साल फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम किए थे। फिर भी 5 साल के बाद जब इन्होंने यूएनडीपी में अप्लाई किया, तो मेरा ही रेफरेंस मांगा था, राइट। ये मुकेश केवट हैं, जो ग्रास रूट वर्कर थे। अभी ये सीईओ, जो एफपीओ वहां पे बना था, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके सीईओ हैं अभी। तो वहां से एक ग्रास रूट वर्कर से, सिंपल ग्रास रूट वर्कर से सीईओ तक की जो जर्नी है, ये उन्होंने एस्टेब्लिश किया मेरे साथ काम करके। उसके बाद मैंने एचआर हेड किया उसी कंपनी के जिसके प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ। और इसमें काफी सारे अवार्ड्स भी मुझे मिले। कनाडा जाने का भी मिला, स्टडी टूर मिला था। किसी मिंट मंच करके एक मैगजीन था जिसमें मेरा नाम आया, आउट ऑफ 33 लेडीज हु डिड सम एग्जाम्पलरी वर्क अकॉर्डिंग टू देम। और उसी टाइम मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी 2 अवार्ड, 2 से ज्यादा अवार्ड थे। एक सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट था, वो आईसीआईसीआई फाउंडेशन अवार्ड था, जिसमें कपिल सिब्बल साहब आए हुए हैं उस अवार्ड को देने के लिए। और जो मेरे साथ दो लोग काम करते थे एचआर में, एक थी मोनी मंडल, जो एग्जीक्यूटिव एचआर ज्वाइन की थी और 6 साल से पढ़ाई छोड़ी हुई थी। और उनको उनको उन्होंने पढ़ाई शुरू की जब उनको मैंने एनकरेज किया। और अभी वो एचआर मैनेजर हैं वहां पे। तो मैंने अपना सेकेंड रैंक को एस्टेब्लिश किया फॉर बेटर वर्क। ये तो लेवरेज था। और एज ए पर्सन मैंने इनको मोटिवेट किया कि
आप थोड़ा सा पढ़ाई शुरू करो, बिना पढ़ाई किए और कांस्टेंट लर्निंग के आपका ग्रोथ तो नहीं होगा। तो इन्होंने वो क्लू लिया एंड नाउ शी इज द एचआर मैनेजर ऑफ दैट सेम थिंग। मैं तो अभी वहां नहीं हूँ, बट शी काइंड ऑफ हेड्स, she is not the HR head, but she is the most important person in HR department right now. अब ये उसके बाद ये जो मेरे जो इतने सारे आपने देखे, इतने सारे अचीवमेंट, ये सक्सेस कैसे हुआ और क्या इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रगल मेरा नहीं था, सो आप जानना चाहेंगे। बट उसके बावजूद भी सक्सेस आए, क्योंकि जो जब भी मैं सोच रही थी ना कि क्या प्रॉब्लम आए और उसको कैसे डील किया जाए, तो हमेशा ही आप राइट स्टेप, आप हो सकता है कि आप बोले कि मैं क्यों करूं। बहुत सारे लोगों को जब मैंने अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया कि इसको डील कैसे किया जाए, तो वो बोले कि तुम क्यों कर रही हो, ये सब छोड़ दो करना। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, ना ही ये सोल्यूशन मैंने अपने लिए लिया। मैंने वही किया उसी टाइम जो करना चाहिए। जब भी आप क्राइसिस में हो और आपको गुस्सा आ रहा हो या फिर दुखी हो रहे हो आप, तो उसी टाइम आपको ये सोचना चाहिए कि आप शायद राइट ट्रैक पे नहीं हो, राइट नहीं सोच रहे हो। राइट सोचने का डिसीजन लेने से ही आप उस सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हो। तो ये देखिए 2010 में जो जिस कंपनी में, जो बड़े कंपनी में मैंने पहला रिसोर्सफुलनेस प्रूव करके मैं आई थी, उसी वो कंपनी कोलैप्स हो गया इन 2010, राइट। अब कहाँ जाऊँ? तो आई चेंज टू अनदर सिस्टर कंपनी, उसी कंपनी की एक सिस्टर कंपनी था, मैं उसी में जंप की, राइट। और उसी कंपनी में भी एंड देन ये जो कंपनी जहां पे मैं आई अभी, इस कंपनी में भी, उस कंपनी से जंप करने का एक रीजन था कि आई वाज साइडलाइन फॉर प्रमोशन ट्वाइस उस कंपनी। और तभी मेरे 2 प्रमोशन ड्यू थे जो मुझे नहीं मिले थे। और उस कंपनी में वो कंपनी कोलैप्स तो कर गई थी, लेकिन इतना तो था कि मुझे रिटेन करते, ये था। और मेरा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो भी था। सीएससी प्रोजेक्ट जो था नेशनल ई गवर्नेंस के अंदर, वो मैं 6 स्टेट में उसको मॉनिटरिंग कर रही थी, सुपरवाइज कर रही थी। और ये मेरा पोर्टफोलियो था, वो मुझे रिटेन करते। लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे 2 बार प्रमोशन नहीं दिया था जब कंपनी अच्छी चल रही थी, तो जब कोलैप्स किया तो वो मुझे ग्रोथ देंगे, इसका मुझे ये कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आ पाया था। सो आई चेंज्ड हियर। इसका मुझे गिल्ट भी होता है, क्योंकि मैं अगर करती तो वो जो 6 प्रोजेक्ट, जो 6 स्टेट्स में मैं काम कर रही थी, वो प्रोजेक्ट्स भी रुकते ना उस कंपनी के साथ। ये गिल्ट भी आता है कि इन लोगों को वो प्रोजेक्ट्स फिर सरेंडर करने पड़े थे, क्योंकि कोई बचा नहीं था इसको सुपरवाइज करने के लिए। और मुझे याद है कि जब मैं कंपनी स्विच करने की सोच रही थी, तो मुझे रिटेन करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट लोगों को लगाया गया था टू स्टे बैक। और चूंकि मुझे ये बात बोली नहीं गई थी, मुझे अगर कोई बोल देता कि आप अगर रुक जाओगे तो ये प्रोजेक्ट सारे रह जाएंगे, पता नहीं उनके ईगो इश्यूज होंगे, किसी ने बोला नहीं, तो मैं भी समझी नहीं, अपने आप क्यों समझती। लेकिन इसका गिल्ट है, क्योंकि वो राइट स्टेप है या नहीं है, इसका गिल्ट मुझे अब तक है। लेकिन चलिए, लाइफ मूव ऑन होता है, सो आई ऑल्सो मूव्ड ऑन। और उसके बाद उसी की जो सिस्टर कंपनी है, उसी में काम करके उसको मैंने काफी बढ़ाया आगे, क्योंकि वो कंपनी 2 करोड़ की थी, जिस कंपनी में अभी मैंने 2010 में जंप किया, राइट। 2 करोड़ की थी। और हमने उस कंपनी को भी 1000 करोड़ प्लस में पहुंचाया था, राइट। मेरी जो कंपनी थी, ये विजय महाजन साहब जो है माइक्रो फाइनेंस के फादर जाने जाते हैं इंडिया में, उनकी एक आइडियोलॉजी है कि जिस कंपनी की
जिस कंपनी में मैं गई थी उस कंपनी एक R&D कंपनी है। वहां पे जो टेक्नोलॉजी परफेक्ट हो जाते हैं ये उसको दूसरे कंपनी में ट्रांसफर कर देते हैं। वो फ्लैगशिप कंपनी फिर उसका नहीं रहता ना, किसी और कंपनी में तब्दील हो जाता था। तो ये था एक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस वाला प्रोजेक्ट जिसके चलते हमारी कंपनी 1000 करोड़ की हो गई थी। लेकिन ये चूंकि सक्सेसफुल हुआ तो इसको उन्होंने दूसरे कहीं पे हाइव ऑफ कर दिया, राइट। तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो दूसरी स्टोरी है। और 2015 में फिर से मुझे साइडलाइन कर दिया गया। मुझे HR हेड तो बनाया गया लेकिन मेरा रैंक चेंज नहीं हुआ। अभी अब हम अगर रोने बैठे कि HR हेड कोई कम है क्या क्योंकि आप हेड हो, आप भले ही एक पर्टिकुलर रैंक में आपका ग्रोथ नहीं हुआ लेकिन आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली जिससे आप वाइस प्रेसिडेंट हजारों होते हैं, HR हेड सिर्फ एक होता है। सो ये मेरा डिस्टिंक्शन था। जो आप नेगेटिव चीज को पॉजिटिवली देखने की सोच जो होती है, अगर आप वो कर लो तो आप एक्चुअली स्टक नहीं फील करते। तो ये जो 2015 में जो हुआ तो मैंने उस टाइम में 40 इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनाए थे जो ग्रास रूट वर्कर के लिए थे। 40 टाइप के प्रोजेक्ट हमारे पास थे और ग्रास रूट वर्कर को नहीं मिलता था इंसेंटिव कभी। तो एज HR हेड मैंने वो डिजाइन किया कि 40 तरह के आप इंसेंटिव दे दो ताकि ग्रास रूट वर्कर जो होते हैं, जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको फायदा मिले और विदाउट सेक्रीफाइसिंग योर कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन। कितना पैसा मिलता है ग्रास रूट वर्कर को? आप 10% हाइक दे दोगे तो आपका बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है। 600 वर्कर को भी आप दे दोगे तो भी एक मैनेजर की जो इंक्रीमेंट होता है उससे कम होता है, राइट। ना कम पैसा मिलता है। और थर्ड टाइम जब परेशान में हुई थी, रॉन्ग अप्रेजल हुआ था। ये थर्ड टाइम नहीं, ये थर्ड टाइप का अप्रेजल मैं बोल रही हूँ। अप्रेजल तो मेरे कई बार ही गलत हुए क्योंकि मैं अनकन्वेंशनल काम बहुत करती हूँ जो लीक से हटके होता है, राइट। सो जो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये करना जरूरी है, वो पहले किसी ने किया या नहीं किया या फिर ये करना चाहिए, ये करना तो चाहिए, करना तो चाहिए क्योंकि मेरे पास वो लॉजिक होता है कि क्यों करना चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैं करती हूँ। और उसके लिए चूंकि वो यूजुअल नहीं है तो रॉन्ग अप्रेजल होते हैं, इंक्रीमेंट नहीं मिलते या फिर कम मिलते हैं। किसी ने तो मुझे ये भी बोल दिया कि यू आर टू डिसिप्लिन टू बी ह्यूमन। अब ये भी अप्रेजल आए तो आप क्या करें? आप डिसिप्लिन होने के लिए आप बोलते हो वर्कर को, जब वो डिसिप्लिन हो जाए तो भी आपको प्रॉब्लम है क्योंकि आप खामी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आप स्ट्रेट बोल रहे हो तो आप आपको वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो आप ये बोलोगे ना। तो दिस वाज ए क्लासिक एग्जांपल मेरे साथ हुआ। और ऐसे ही उल्टे सीधे काफी सारे कमेंट्स आपके भी बॉस देते होंगे, राइट, जो आपको पसंद नहीं आते होंगे। और उसको आप काउंटर कैसे करते हो? आप सोचो कि आप काउंटर कैसे करते हो। मैंने एक पॉजिटिव काम करके उसको काउंटर किया, ना कि उनके साथ झगड़ा करके। झगड़ा करने से क्या होगा? झगड़ा करने से तो आप कभी एक बॉस को आप एक हद तक ही बोल सकते हो, राइट। जो आपके सीनियर्स हैं वो अगर गलत भी बोल रहे हैं तो आप उनको एक हद तक ही प्रोटेस्ट कर सकते हो ना, उसके बाद तो शायद वो इंडिसेंसी होती है। आपको नहीं बोलना चाहिए। रिस्पेक्ट तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। वो बंदा उस पोजीशन में इसलिए है, अपनी कैपेबिलिटी की वजह से है। वो कुछ एक बार गलत कर दिया, इसका रीजन नहीं है कि उसकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, राइट। सो ये था। तो जब 2009 में ये मुझे बोला गया तो मैंने एक इको टूरिज्म का प्रोजेक्ट कर दिया मेघालय में। इको टूरिज्म का प्रोजेक्ट आउटलाइन किया था। तो आज होता है एक जगह जहाँ पे आपके बहुत सारे कुछ और अपॉर्चुनिटी नहीं हो
लेकिन वो जगह बहुत ही नेचुरल ब्यूटी से भरा हो, तो यही आप कर सकते हो इजीली इको टूरिज्म। सो आउटलाइन कर दिया। अभी इको टूरिज्म पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छे से चलता है। और 2009 में ये बोलते हुए मुझे बजट नहीं दिया गया था सर्व करने के लिए क्लाइंट्स को। ये 2016 में भी हुआ था, जब मैं क्लाइंट रेजिलियंस प्रोजेक्ट कर रही थी, जहां पे मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे फील्ड में। बजट नहीं मिलेगा तो कैसे कर सकती हूँ, राइट? तो फील्ड ऑपरेशन मतलब आप लोगों के बहुत पास होते हो, तो आपको इंसाइट्स बहुत अच्छे से, बहुत प्योर इंसाइट्स मिलते हैं जब आप लोगों के पास होते हो, क्योंकि आपको पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, राइट? तो वहां से मुझे हटाया गया था 2-3 बार। तो जैसे मैंने बोला कि 2 बार मुझे फील्ड ऑपरेशन से हटाया गया था। एक बार तो मुझे सेंट्रल ऑफिस में शिफ्ट किया गया था। ये मेघालय इको टूरिज्म जब मैंने किया था, उसके बाद मुझे सेंट्रल ऑफिस में शिफ्ट किया गया था, तो वहां पे मैंने दूसरा काम किया था। एंड ग्रास रूट वर्कर्स अभी 2015 में जब मुझे फील्ड से हटाया गया था, एचआर हेड बनाया गया था, तो उसको भी मैंने अपॉर्चुनिटी लेके वहां पे इंसेंटिव सिस्टम बनाया था। जो सिस्टम मैंने बना दिया था, आप भले ही उसको इम्प्लीमेंट नहीं करो, लेकिन वो सिस्टम अगर है तो जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है मैनेजमेंट, तो उसको हमेशा एक गिल्ट लगी रहती है कि हमने नहीं दिया, नहीं दिया, क्योंकि इसके पहले शायद उनको नहीं पता था कि वो नहीं दे रहे। राइट? जब 2015 से फिर, चूंकि मैंने ये ग्रास रूट वर्कर का काम कर दिया था, तो फिर वहां भी उनको अच्छा नहीं लगा, तो फिर से मुझे फील्ड में भेज दिए थे। राइट? एक डेड वाटर सेट था, उसको रिवाइव करने, उसको भी मैंने रिवाइव कर दिया था। तो अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं, राइट? 2 बार हो गया शायद। तो सम रूल्स आई अडॉप्टेड, नॉट टू फिट इन। मतलब कैसे अब वहां पे चल रहा है सिस्टम, उसमें फिट इन नहीं होना है, ये नहीं हो पाती हूँ कभी। डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। जो अगर आपको हमेशा ही नेगेटिव बोल रहे हैं, आपकी एनर्जी नहीं तो फिर नेगेटिव हो जाती है। लेट गो। और जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया, अगर आप दिमाग में रखे रहोगे तो वो भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको लेट गो करो, वो माफ करो या फिर अपना रास्ता ढूंढो। एंड देन अभी जब आप कुछ कर रहे हैं, उसका रिजल्ट शायद अभी आपको नहीं मिले, इसको डिलेड ग्रेटिट्यूड भी हम बोल सकते हैं। तो बाद में शायद इसका एविडेंस आएगा। जब मैं शुरू की थी, ये सारे जो काम मैंने अभी गिनाए थे, जो मेरे प्रोमिनेंट काम थे, जब शुरू की थी तो मुझे नहीं लगा था कि ये काम इतने बड़े बन जाएंगे। वो बाद में हो सकता है। अब उस टाइम में मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम किया था, बी कीपिंग पे काम किया था, और मुझे याद है मेरे एमडी ने मुझे बताया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन घट जाती है। तुझे कोई हक नहीं बनता है कि फार्मर का प्रोडक्शन घटाने का, लेकिन वही लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, अभी सभी कोई बात कर रहा है, वो खुद से कर रहे हैं। जो एमडी मुझे मना किए थे, अभी वो अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हैं। कितने साल बाद? 7 साल बाद। बी कीपिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, अभी COP26 हुआ था, वहां पे बी कीपिंग एक प्रोमिनेंट फीचर है आपके कार्बन फुटप्रिंट घटाने का। वो तो मुझे उस टाइम पता नहीं था कि बी कीपिंग से ऐसे होता है। मैंने तो पॉलिनेशन के चक्कर में किया था कि मैं ऑर्गेनिक कर रही थी, तो मुझे क्रॉस पॉलिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और वो बिना बी कीपिंग के होता नहीं। तो बीज वहां पे थे अराउंड, उसका मैंने लिवरेज किया, वो फैक्ट था। वहां पे वो रिसोर्स था, उसको मैंने यूटिलाइज किया, रिसोर्सफुलनेस था। राइट? नो कंपैरिजन। अब उस टाइम में मैंने कंपैरिजन किया था कि सारे लोग, जब जब मैं बोल रही हूँ कि सारे लोगों का प्रमोशन हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, उस टाइम में किया था मैंने कंपैरिजन। लेकिन थोड़े दिनों बाद मुझे पता चला कि वाइस प्रेसिडेंट बहुत सारे हो सकते हैं, एचआर हेड एक ही हो सकती है। राइट? तो अगर आप कंपैरिजन करोगे ना, तो जो खासियत आप में है, आप उसको खो दोगे। राइट?
मैं बोलती अगर कि मैं वाइस प्रेसिडेंट थी वहां पे, वो ठीक है। एचआर हेड जब मैं बोल रही हूँ ना, आपके दिमाग में दूसरा ही कुछ आ रहा है, दूसरा रेस्पेक्ट आ रहा है मेरे लिए, राइट। ये जब कंपेयर करके मैं अपने आप को नहीं दे रही थी, तो आप कैसे देते? बीइंग इन बी जो, तो अपना जो होता है ना कि आप बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो रहे होते हैं, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब लोग ग्रो कर रहे होते हैं आपके मुकाबले बहुत ज्यादा, और कुछ लोग कुछ और हासिल कर रहे होते हैं। वो कर रहे हैं तो फिर उससे आपको क्या? इससे हमको परेशानी होती है, ये भी कंपैरिजन है। तो अगर आप, आपके जो ब्लेसिंग्स होते हैं ना, उस ब्लेसिंग्स को आप काउंट नहीं कर रहे होते हैं, जब आपके दिमाग में ये आ रहा होता है तो उसी टाइम में ब्लेसिंग्स का काउंट करना। इसीलिए ग्रेटिट्यूड हम लिखते हैं। ग्रेटिट्यूड क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स में काफी ज्यादा फंस गए हैं, राइट। यहाँ पे जब खूंटी में थी, तो पंचायत सेक्रेटरी सुबोध माझी ने मेरे लिए यही बोला कि शी फाइंड्स ए वे फॉर हरसेल्फ एंड फॉर अदर्स। अब लेस देन ए ईयर शी हैज रिवाइव्ड द ह्यूमंस ग्रुप ट्रिमेंडसली, ये सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर खूंटी ने बोला। अब ये आ जाता है कि अब कितने दिन तक सीखें, राइट। और कैसे क्या करें, जैसे टू स्टे रिलेवेंट। आपको रिलेवेंट तो रहना ही है, क्योंकि आप बहुत ही अनकन्वेंशनल हो, अनयूजुअल हो, आपने अनयूजुअल रास्ता भी चुना है। अभी ट्रिक ये है कि आप अभी एक चीज में फोकस करो रादर देन स्प्रेडिंग। अब आप जब मेरा ये था, तो कभी मैं एफपीओ कर रही हूँ, कभी वाटर सेट कर रही हूँ, कभी फील्ड में लेडीज का कुछ फेडरेशन बना रही हूँ, कहीं पे कभी ई गवर्नेंस कर रही हूँ। ये सारे स्प्रेड हैं, मतलब डिफरेंट 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 वेज में मेरा एक्सपर्टाइज बन गया। जो भी मुझे काम मिला, जो भी प्रॉब्लम मिला, उसका मैंने सोल्यूशन किया, एंड देन उसका एक्सपर्टाइज भी मैंने डेवलप किया। अब ऐसे कितने सारे काम हम कर सकते हैं। सो एक टाइम आता है जब आप डिसाइड करो कि आप एक क्या चीज करोगे जिसमें आपकी सारी एनर्जी जाए और वो यूजफुल बने लोगों के लिए। तो डेप्थ आपको क्रिएट करना है। जितने सारे एक्सपीरियंसेस, प्रायर एक्सपीरियंसेस हैं, उनका इंटीग्रेशन कीजिए। जैसे मैंने एग्रीकल्चर वाला मेरा जो एक्सपीरियंस था, कम्युनिटी मैनेजमेंट वाला जो एक्सपीरियंस था, और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बनाने का जो एक्सपीरियंस था, उसको तीनों को लगा के मैंने सिक्किम में 11 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए। ये है डेप्थ। फिर अभी जो मैं करती हूँ उसमें मैं हूँ एक, मैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करती हूँ अफोर्डेबल हाउसिंग में फॉर ईडब्ल्यूएस, राइट। ये फोकस है मेरा अभी। उसको मैंने कैसे दे दिया है स्लोगन कि ये सोलर एफिशिएंट, डिजास्टर रेजिलिएंट, सस्टेनेबल, अफोर्डेबल हाउसिंग होगा। ये मेरा पोर्टफोलियो। अफोर्डेबल हाउसिंग में मेनली बोल सकती हूँ, लेकिन ये सोलर एफिशिएंट है, मतलब सोलर एनर्जी का यूज है। डिजास्टर रेजिलिएंट है, मतलब कि आप डिजास्टर बहुत सारे आते हैं इंडिया में आजकल, तो पूरे अगर पिछले 10 साल का अगर आप मैप देखें तो इंडिया का मैप पूरा काला हो जाएगा। मतलब इतने डिजास्टर आते हैं, कभी फ्लड आता है, कभी साइक्लोन आता है, कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, ये सारे। एंड और सस्टेनेबल मतलब कि लोगों के पास खाने पीने का सामान फिर भी हो, लोग खुशहाल रहें, ये सस्टेनेबिलिटी होती है। एंड हाउस मतलब कि अगर आपके सर पे छत ना हो तो फिर आप कोई सा काम नहीं कर सकते। और जो इंडिया में 37% पॉपुलेशन है, उसके पास कच्चा घर है या फिर घर है ही नहीं, राइट। तो ये डिजास्टर के काफी ज्यादा प्रोन होते हैं। तो इनको अगर हेल्प करना है, अगर कर रहे हैं, तो आपको ये सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करके काम करना होगा, राइट। तो इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। कोई घर बनाता है, कोई सोलर पावर रिलेटेड टेक्नोलॉजी देता है, कोई डिजास्टर रेजिलियंस रिलेटेड
हेल्प देता है या फिर टेक्नोलॉजी या फिर नॉलेज देता है या फिर कैपेसिटी देता है, और इनकम रिलेटेड, इनकम कैसे इनकम एनहांसमेंट स्कीम्स होते हैं वो देता है। तो ये सारे लोगों को मैं इकट्ठा करती हूँ, सिनर्जाइज करती हूँ, फैसिलिटेट करती हूँ। मेरा एम क्या है? इन गरीब लोगों का छत बनाना, घर बनाना, राइट? उसमें मैं और बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर लेती हूँ। ये सारे मेरे एक्सपीरियंस थे। लोगों के पास घर होगा तो उनका इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो वो खुशहाल होंगे, खुशहाल होंगे तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा और वो खुश होंगे, राइट? तो वो जो मेरा सबसे पहले जो मेरा था कि लोग खुश होंगे तो मैं उन्हीं के साथ मिलके ही खुश हो सकती हूँ, अदरवाइज नहीं हो सकती। और ये सब करने के लिए मैंने छोटा सा मेरा एफर्ट शुरू हुआ। अभी उस एफर्ट को सपोर्ट देने के लिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो नोबेल लॉरेट हैं, जो बांग्लादेश से हैं, इनका है स्मॉल एंटरप्राइज बनाना, कि आप लोगों को बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं दे सकते, उसमें कार्बन फुटप्रिंट भी फिर आता है, राइट? लेकिन उनको आप अगर स्मॉल एंटरप्राइज उनके जरूरत के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से अगर दे दो तो उनकी रोजी रोटी भी चलती है और वेल्थ उसी से बिल्ड होता है। डिजास्टर रिलेटेड हेल्पलेसनेस भी उससे होता है। वो काफी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें छोटा सा काम मैंने शुरू किया है एफोर्डेबल हाउसिंग के जरिए। और ये है एडवोकेसी, जहाँ पे मैं फाइनेंस सेक्रेटरी उड़ीसा, उनके साथ मैं बात कर रही थी किसी एक वेबिनार में, बताने के लिए कि अभी तक फनी एक साइक्लोन था जो 2019 में उड़ीसा में आया था और उसके बाद भी ये सारे नहीं बने, ये घर नहीं बने। उनको बताने के लिए अभी 5 दिन पहले ही उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है कि 1.84 लाख घर अभी भी नहीं बने हैं उड़ीसा में। तो कोई मान नहीं रहा था ना कि सारे घर नहीं बने हैं। तो ये आपके कंसिस्टेंट एफर्ट की वजह से होती है कि आप बताते रहते हो लोगों को कि ये नहीं हुआ है, ये हमको करना चाहिए। और इसका एक सेकंड स्टेज जो है, ये जो मेरा फोकस है, इंटीग्रेशन है, इसको अगर मैं स्प्रेड करूं लोगों को, ये जितने सारे लोगों को मैं दे दूंगी, ये सारे मेरा माइंडसेट, मेरा स्किल जो और मेरा ट्रिक, मेरे सीक्रेट्स जितने सारे लोगों को दे दूंगी उतना अच्छा। और ये मैं ग्लोबली देना चाहती हूँ। और ये कैसे होगा? क्विकली, ये डिजिटली होगा। तो जो मेरे मेंटर हैं विवेक मेहरोत्रा, इन्होंने मुझे कहा, इनके पास तो मैं इसलिए गई थी क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट हैं और मेरे बहुत सारे शौक, पढ़ने के शौक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सब्जेक्ट भी है और ये एक्सपर्ट है। मैं इनके पास इसीलिए गई थी। लेकिन जब एक डिजिटल व्हीकल चूज करने की बात आई तो मैंने सोचा कि शायद कॉपीराइटिंग लिखूं, कॉपीराइटिंग ही रखूं अपना व्हीकल। इन्होंने बोला नहीं, आप कोच कर सकती हो क्योंकि आपके सारे जो इनसाइट्स हैं वो एक कोच के लगते हैं। तो पहली बार मुझे ये रियलाइज हुआ कि इतने सारे जो इनसाइट्स हैं या फिर जो स्किल्स हैं, इसको मैं सिर्फ इसी तरह से ही डायरेक्शन दे सकती हूँ। तो इसी तरह से इन्होंने मेरा जो लाइफ का मिशन है उसको खोला। तो गुरु है मेरे, राइट? उनके जो मेंटर हैं वो है सिद्धार्थ राजशेखर, जो डिजिटल मेंटर हैं। और उनका एक सिस्टम में मैंने ज्वाइन किया है, जिसमें एक फर्स्ट फेज का जो सिस्टम था उसको मैंने अभी कंप्लीट किया है, जिसको फ्रीडम फिनिशर बोलते हैं। और ये सारे मेरे कोचेस और आप क्या बोलते हैं, मेंटर्स हैं, जो जिनसे मैं लगातार सीख रही हूँ। और हम सभी को सीखना चाहिए, राइट? लगातार सीखने के लिए। और ये डिफरेंट चीज टीच करते हैं और सारे अराउंड लाइफ और बेटर लाइफ स्टाइल और
सोच, थॉट प्रोसेस, माइंडसेट और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। और कुछ ऑनलाइन सक्सेस स्टोरीज जो मेरे शुरू हुए हैं, इसमें निधि हैं एक जो एमडीएम एक्सपर्ट हैं। उनका कहना है कि extremely talented and mature in her work, she coaches well, she pushes you to deliver and reach your best. Great coach, thank you, looking forward to working with her again soon. और ये राना सबीर हैं जिनको मैंने मार्केटिंग प्लान और ये इंटर्न ही थी और इनको मैंने रिपोर्ट लिखना सिखाया। और ये प्रवीण सामंत हैं जो वीपी लेवल बंदे हैं जिनको 2.5 साल से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। अभी ये वीपी क्रेडिट कहीं भी ज्वाइन किए हैं, जब ये बोल रहे थे तभी इंटरव्यू ही दे रहे थे। और ये थे मेरे कुछ सक्सेस स्टोरीज। और ये सारे बताने के लिए मैंने जो कोर्स बनाया है उसका नाम है लीडरशिप ग्रोथ ब्लूप्रिंट। सो मेरा फ्लैगशिप जो कोर्स है वो है लीडरशिप ग्रोथ ब्लूप्रिंट। उसके साथ 5 बोनसेस हैं जो हमने अभी बात की ना, जितने सारे माइंडसेट की बात की, जो सोच की बात की एंड देन एक्शन की बात की, ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं 5 बोनसेस के साथ। और ये लीडरशिप ग्रोथ ब्लूप्रिंट है। आप इररिप्लेसिबिलिटी हैं, सॉर्ट आफ्टर कैसे बनते हैं, स्टैंड आउट एज ए पर्सन ऑफ सॉल्यूशंस, द अल्टीमेट लीडर, ये इसके लिए है। और इसके जो 4 डेज कोर्सेस हैं वो है डे 1 में रिबर्न विद रिसोर्सफुलनेस, कोर वैल्यूज, सेट प्रायोरिटीज, स्टैंडिंग आउट इन ए क्राउड, गोल सेटिंग, बैक स्टोरीज ऑफ रिसोर्सफुल इन्फ्लुएंसिंग, आपकी लाइफ में कैसे हो सकती है अनयूजुअल लीडरशिप स्टाइल। ये ड्रीम ट्रैकर मैंने अपने लिए बनाया है, ये आपके लिए भी बनेगा। आपको बनाना चाहिए अपना ड्रीम ट्रैकर। ये एग्जैक्टली इसी तरह से हो चाहे नहीं हो, आपको बना के रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कैसे लाइफ आपको ये ब्लेसिंग दी, राइट। और इसके जो एडिशनल जो रीडिंग है वो है एक्शन ओवर एक्सक्यूजेस, ट्रांसफॉर्मेशनल लेजर, यू आर एनफ, नो योर वर्थ, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, टेक बेबी स्टेप्स। ये सारे एक्सरसाइजेस होते हैं जिसके इवैल्यूएशन भी होते हैं। आप खुद के इवैल्यूएशन कर सकते हैं और अपना ग्रोथ भी ट्रैक कर सकते हैं। डे 2 में होता है बिल्डिंग रेजिलियंस, गिव अप लिटिल लेटर, belief is a precursor to behaviors, aptitude and perception, resourceful is you and around, trust building। और एडिशनल जो स्टडीज होते हैं, स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ द स्टोरी, विजुअलाइज योर सक्सेस, टेक द चैलेंज, रीराइट टू इंस्पायर, क्लू इन कॉन्ट्राडिक्शन, पेंट द पाथवे। डे 3 में है रिसोर्सफुलनेस टुवर्ड्स ए डिजायर्ड गोल, self tracking the learning pattern, innovate and resolve, team game, इमोशनल रेजिलियंस, स्टडी ग्रोथ। और एडिशनल रीड जो है ऑटोमेटेड ग्रोथ हाउस, बॉस इन नेक्स्ट लेवल, रेज द बार, एवरेज कैन बी इन 2% प्लस माइनस प्रॉक्सिमिटी, एवरीडे डिस्टिंक्शन। और डे 4 है ऑन द मूव, कितना भी आप पढ़ लो, कितना भी आप सक्सेस हो जाओ, आपको ऑन द मूव रहना चाहिए। चेंज, शिफ्टिंग पैराडाइम, mindset for greener opportunities, find your vision and decide your version, taking action right away, money management talks, take a stand and stand by it, constructive exchange to improve adversity quotient, small action step to the journey of 1,000 miles, trust and relationship, hands on before automation। और एडिशनल जो स्टडीज है, डीप लर्निंग, सेंसिबिलिटी, वेलनेस एंड अपक्राफ्ट, growing beyond the immediate requirement, right? And the 5 bonuses है internal patterns, power of within, thoughts, belief and behaviors, mindset at workplace, fine tuning the goals, self worth। और एडिशनल जो है pull your own strings, attitude shift, body capacity, expectation aligned, choose your own phoenix। सेकेंड बोनस जो है माइंडफुलनेस सर्च, उसको मैं बोल रही हूँ, पॉज एज ए रिएक्शन, साइलेंस एज ए रिएक्शन, बीइंग इन ग्रेटिट्यूड, प्लान ABC, एम्बिग्विटी।
Supplementaries है permit yourself to dream, higher self-esteem, loser to winner and achiever, comfort zone syndrome, natural abilities, core competencies, touch base with your strengths at the moment of despair, flat out fantastic, next right step, give when you want to receive, examine past conditioning, blockages, victory. प्रोसेस वर्सेस रिजल्ट नेक्स्ट बोनस है कंटिन्यूअस अपग्रेड के लिए. Tracking along race system, inherent attitude, elevate standards, mindset reset, facing criticism, core intentions. And supplementaries है make, maintain, manage, mindful, milestones. ये सारे आपको एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं और रोज जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उस एक्सपीरियंस को आप एसेस कर सकते हैं इसके थ्रू. ये छोटे छोटे वीडियोस हैं जो 3 to 5 मिनट्स हैं. नेक्स्ट है नेक्स्ट जो आपके बोनस है वो डेलीगेट अप्रोप्रिएट. ये दिस इज अबाउट मेंटरिंग. स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है. टैलेंट नर्चरिंग, मैपिंग एचआर, रोल असाइनमेंट, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, एक्नॉलेज कंट्रीब्यूशन. एंड उसके सप्लीमेंट्रीज हैं टर्न इन विद सेल्फ, एसेस योरसेल्फ, स्ट्रेटेजाइज मेंटरिंग, किल लेथार्जी. फिफ्थ बोनस जो है जॉयप्रेन्योरशिप, जॉय, creative diversion, investing in a new skill, monetizing the skill, social cause, inhabit the world. आप ग्लोबल सिटीजन बनते हो. सप्लीमेंट्रीज है जॉय, जगल, आउट ऑफ द बॉक्स, यार्डस्टिक. और ये लीडरशिप ग्रोथ ब्लूप्रिंट बंडल किस लिए है? ये इन्फ्लुएंस विथ रिसोर्सफुलनेस सिखाती है, ग्रोइंग इनर स्ट्रेंथ, बिल्डिंग कैपेबिलिटी, being resilient, implant influence, anticipating and preparing for change. और ये सारे हैं 59,994 पूरे सारे. तो आपके रिजल्ट्स क्या होंगे देख लेते हैं. ये 14 वीक्स के हमारे डेलिब्रेशन रिजल्ट्स होते हैं. अपार्ट फ्रॉम आपके वीडियो कोर्स आप ये 14 वीक्स वाले क्लासेस भी होंगे हमारे 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर. इसमें हम फाइंडिंग योर यूएसपी करेंगे, मेकिंग द माइंडसेट डॉक्यूमेंट करेंगे, विनिंग ट्रस्ट ऑफ सीनियर्स, अंडरस्टैंड देयर विजन, विनिंग ट्रस्ट ऑफ पीयर्स, गोल सेटिंग करेंगे, ड्रीम ट्रैकर. दीज आर द रिजल्ट्स दैट यू विल बी अचीविंग इन 14 वीक्स टाइम. टर्निंग ए नेगेटिव स्टोरी टू ए पॉजिटिव वन इंस्टेंटली, ये 2 वीक्स लगते हैं. चेंजिंग गियर टू पॉजिटिविटी. वीक 9 में reinforcement of positive thoughts, shifting paradigm, attitude and perception. 10th में shifting paradigm, habit and action. 11th में creating a success blueprint. 12 में confidence installation. 13 में mindfulness, empathy. And 14 में transition map, integration of passion and emotion with work. राइट. ये रिजल्ट्स होंगे हम आपके 14 वीक्स में. एंड टुडेज वेबिनार प्राइस विल बी जस्ट 5999. सो यहाँ पे शेयरिंग स्टॉप करते हैं. एंड इफ यू हैव